Good morning student. Today in our fourth standard we are going to learn our fourth chapter, water safe for drinking. So in our earlier chapter we have discussed that water is very important. Even though it rains only for a few months in a year, but we store the water for whole year round use because we need water early morning when we get up from that moment up to we go to sleep. We need water for different purpose. There are hundreds of tasks that can be done using water. Without water we cannot imagine our life. So water is called as life. We store the water, but today we are going to see what is mean by water safe for drinking. Even though water is life, but if we are drinking pure water, then only it will help us to survive. Then only it is good for our health. But if you are not drinking pure water, the water that you are drinking is not hygienically stored. If it is not handled hygienically, then in that case we see that the water may cause stomach pain, diarrhea, loose motion, vomitings, etc. So it is very important that the water that it should be pure water, it should be safe water. सेफ वाटर मतलब क्या कि जिसमें कोई भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज ना हो, जिसमें कोई डस्ट ना हो, जिसमें कोई माइक्रोब्स ना हो, दैट इज कॉल्ड एज safe water. One activity is given here. Take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. See what changes take place. एक्टिविटी दी है यहाँ पर, क्या करना है तुम्हें, एक चम्मच शुगर लो, टेक 1 teaspoonful of sugar, mix it with 1 glass of water. What you will see, when you stir it well, you will see that the sugar it disappears completely. वाटर में जब हम शुगर ऐड करते हैं और उसको अच्छे से स्टीयर करते हैं तो क्या हो जाता है, जो वाटर है उसमें सारी शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है. हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें शुगर है या नहीं. कब पता चलेगा कि इसमें शुगर है? व्हेन यू टेस्ट इट. अंडरस्टैंड? व्हेन यू टेस्ट इट देन ओनली यू कम टू नो दैट इट इज हैविंग वाटर इन इट. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो. तो इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर तुमने वाटर में शुगर ऐड की, वैसे और भी कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर तुम्हें दिए हुए हैं और वो ग्लास के कंटेनर्स लेने हैं. ग्लास के बाउल्स लो या फिर ग्लास के कांच के ग्लास लो, उसमें वाटर भरो और ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करो और देखो कि उसमें कलर कैसे चेंज होता है. कुछ इसमें कलर चेंज होता है, कुछ इसमें कलर चेंज नहीं होता, बट ओनली टेस्ट इज चेंज्ड. Wash the glass clean every time you take the next substance. Common salt. When you first you have to add some sugar. In another glass add some common salt. When you add common salt मतलब जो salt हम फूड कुकिंग में या खाने में यूज़ करते हैं, that is called as common salt. If you add that common salt in a glass of water, it also disappears completely in the water. वो completely dissolve हो जाता है, बिल्कुल हमें दिखाई भी नहीं देता. Then secondly honey. When we add honey to water, a slight change in water can be seen. क्योंकि honey का जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर होता है और नॉट कम्प्लीटली येलो लाइक लेमन, बट इट इज़ गोल्डन येलो कलर होता है. इसीलिए जब हम हनी और वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर का भी कलर स्लाइटली चेंज हो जाता है. देन वॉशिंग सोडा मीन्स दैट डिटर्जेंट पाउडर्स एक्सेट्रा. व्हेन वी ऐड इन इट फॉर्म्स द फॉग और यू कैन से लेदर. इट फॉर्म्स द लेदर, उसमें झाग बन जाता है. Then powdered alum also makes the water a little milky. Then sand. If we add sand in the water, sand doesn't dissolve in water. When we add it, it sinks down and it settles in the at the bottom of the container. Then wheat flour. When we add it, it becomes somewhat milky. Then sawdust also doesn't mix with water. Turmeric powder, it doesn't completely mix with water, but it makes the water yellow in color. And some oil. If you add oil in the water, oil is lighter than water, so it will float on the surface of the water.
इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। एक तो उनका सेपरेट लेयर बन जाता है या फिर वो सिंक हो जाते हैं, वाटर के जो कंटेनर है उसमें वो डूब जाता है, नीचे जाकर बैठता है। जैसे तुम एक स्टोन डालो, बाउल में स्टोन डालो तो क्या होगा, सैंड डालो, स्टोन डालो, तो वो ऊपर लेयर नहीं बनाता या कम्प्लीटली वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन वो बॉटम में जाकर बैठ जाता है। सो यू कैन कम्प्लीटली मिक्स होने वाली कौन सी चीज़ें हैं, एलम पाउडर कम्प्लीटली मिक्स होती है, शुगर, सॉल्ट, ये जो है देन वॉशिंग सोडा, ये कम्प्लीटली मिक्स होता है। लेकिन कभी कभी हनी कम्प्लीटली मिक्स होता है, लेमन जूस ऑल्सो मिक्सेस कम्प्लीटली, बट दे चेंज, देर a slight change in the color of water can be seen if you add sawdust मतलब क्या पता है, जब फर्नीचर बनाने के लिए वुड को कट करते हैं तो वुड के जो फाइन पार्टिकल्स गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉडस्ट। सॉडस्ट को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो मिक्स नहीं होता, उसका एक सेपरेट लेयर बनता है या वो वाटर में ऐसे ही फ्लोट होते रहता है। देन टर्मरिक पाउडर भी कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती, उसका एक लेयर नीचे बॉटम में उसका एक लेयर बन जाता है। और ऑयल तो वाटर से बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए जब हम उसको इसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो उसका एक सेपरेट लेयर, बहुत बार तुमने देखा होगा ना घर में मम्मी जब वेजिटेबल बनाती है या दाल बनाती है तो दाल के ऊपर एक वाइट ऑयल का एक लेयर बन जाता है। क्यों वो दाल के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर से लाइटर होता है। इन दिस वे वी सी दैट from this activity what we can come to know that sometimes some of the impurities can be mixed with water. There can be some of the impurities, they are visible impurities, we can see them because they do not dissolve in water, and there are some impurities which dissolve completely in water, we cannot see them, and when they reach our stomach they cause stomach upset. What do you see? Sugar, salt, washing soda, alum disappear in water. They dissolve completely in water. But sand, sawdust, turmeric powder, oil do not disappear even on stirring. They do not dissolve. कितना भी टाइम तुम उसको स्टीयर करो, सॉडस्ट मतलब लकड़ी का जो चूरा होता है, वुड का जो फाइन पीसेस होते हैं, वो कितना भी इसको स्टीयर करो, 2 दिन भी उसको वैसे ही रखो, इट विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर. What does this tell us? From this activity what we come to know, some substances dissolve in water while some substances do not. Water की क्या नेचर है, वाटर में कुछ सब्सटेंसेस इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते. The substances that dissolve in water spread throughout the water. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves, the water tastes sweet. सिर्फ वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, कुछ जैसे शुगर डिज़ोल्व करो तो वाटर जो है वो स्वीट बन जाता है, सॉल्ट डिज़ोल्व करो तो वाटर जो है वो सॉल्टी बन जाता है, लेकिन वाटर का कलर चेंज नहीं होता मोस्टली. सो अ न्यू टर्म इज गिवन हियर, सॉल्यूशन. व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व्स इन वाटर, अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म्ड. This mixture is called the solution of that substance. Solution मतलब क्या, कि जैसे हम शुगर और वाटर एक साथ मिक्स करते हैं तो वाटर में completely dissolve हो जाती है शुगर, so that is called as sugar solution. When we mix salt in the water, it completely mixes with the water, it is called as salt solution. So solution is a substance. When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. This mixture is called the solution of that substance. If someone gets loose motions, we get them a solution of salt and sugar to drink. एक सिंपल यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है वाटर का. जनरली हम देखते हैं कि किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, बार बार उसको लूज मोशंस होते हैं, उसको डिफिकेटिंग के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है. तो वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स ORS देते हैं. तुम लोगों ने कभी वर्ड सुना होगा ORS. ORS मतलब इससे पैकेट होता है
अलग अलग उसमें फ्लेवर्स आते हैं। उस पाउडर को हमें वाटर में मिक्स करना होता है और टाइम टू टाइम उसको ड्रिंक करना होता है। जैसे हम शरबत वगैरह लेते हैं वैसे ही ORS होता है। ORS ये एब्रीवेशन है। ORS का लॉन्ग फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सिरप या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम उसको ओरली लेते हैं, हम उसको पीते हैं और वो अंदर जाके हमारे बॉडी में वाटर लेवल जो कम हो गया है उसको मेंटेन करता है। दैट इज कॉल्ड एज ORS। ओके, तो आजकल मार्केट में ये ORS पैकेट में अवेलेबल है, बट यू कैन मेक योर ओन ORS एट द होम। किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे तो ऐसे सिचुएशन में, वोमिटिंग्स हो रहे तो ऐसे सिचुएशन में हम ORS बना सकते हैं घर में। कैसे बना सकते हैं? Add a spoonful of sugar, only a pinch of salt in clean water, in pure water, and mix it thoroughly and drink it. That is the ORS. Understand? ये है, ये कब दिया जाता है? जब हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है तब ये दिया जाता है। A patient in a hospital is sometimes put on saline. That is on a solution of salt in water. Sometimes other medicines may also be given through saline. These are examples of useful solutions. तो ये वाटर के साथ होने वाले यूजफुल सॉल्यूशंस है। देखो अभी आजकल डॉक्टर थोड़ा भी मेडिसिन डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू नहीं देते। कोई बीमार हो गया उसको डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर क्या करते हैं? सीधा सलाइन लगा देते हैं। इधर से ही इंजेक्शन लगा के छोटा सा पाइप होता है, उसमें से एक बॉटल होती है, तो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है सलाइन वाटर, सलाइन मतलब सॉल्ट मिक्स वाटर होता है वो, और वो हमारे बॉडी में ड्रिप किया जाता है, हमारे बॉडी में छोड़ा जाता है उसको। तो उसके साथ साथ डॉक्टर्स उसमें कुछ मेडिसिन्स भी, इंजेक्शंस भी पुट करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी को फिर से स्ट्रेंथ मिल जाती है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एग्जांपल ORS or saline water. These are the examples of useful solutions. Okay, there are again many points related to this. Those points we will discuss in our next video. Okay, so let's meet tomorrow again.